morning, friends. Today I am starting a new topic, gears. And in the last few lectures, last couple of lectures, we have completed velocity analysis and acceleration analysis. So if you have any doubt about the concept of velocity analysis and acceleration analysis, you can ask in tomorrow live lecture, which is from 11:45 to 12:15. And if any problem you have, you can ask that problem in that lecture about your city also. I have checked your city copies and send you the numbers. I have sent you the numbers. So you have any doubt, can you can ask in the tomorrow lecture. Today I am starting gear. So gear are the gear. So far we know that all the velocity analysis and acceleration we doing on the mechanism which have lower pairs only. So gear is a type of higher pair because gears have the point contact. Two gears have point contact. That's why gears are come the category of higher pairs. So in this module, in this unit, we learn about two higher pairs. One is gear, one is cam and follower. So first I am taking the gears. Then after completing the gears, we will take another higher pair, that is cam follower. Okay. So today I am taking gears. Gears are nothing. Gears are tooth wheels. Gears are tooth wheel. If we take a friction disc, if I'm taking if I will take the circular friction disc and cut teeth on that disc, then the teeth formed on that disc is called gears. So gears are nothing. Gears are the tooth wheels. Gears are nothing. Gears are the tooth wheel. Okay, एक सर्कुलर पार्ट पे मैं एक सर्कुलर फ्रिक्शन डिस्क पे मैं टीथ कट कर दूं, then that friction disc, then that circular disc is called gears. Okay, so the gears are used. Why we developing the gear? Why are we developing the teeth on the gears? Are used to maintain constant angular velocity ratio. If one gear is on one shaft and another gear is in another shaft, then the gears are used to maintain the constant angular velocity ratio between the two shaft. अगर एक shaft पे एक gear लगा हुआ है और दूसरी shaft पे दूसरा gear लगा हुआ है और दोनों gear आपस में mesh में हैं, तो पहला gear दूसरे gear को जो रोटेट करवा रहा है तो इस तरह से रोटेट करवाए कि दोनों shaft के बीच में angular velocity ratio क्या रहे, maintained रहे, मतलब angular velocity का ratio change ना हो. That's why we use gears. तो ये और टॉपिक ये एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ द लेक्चर. ओके, तो gears are tooth wheels, are the form of higher pair, are used to maintain the constant angular velocity ratio between two shafts. We can between two shafts. The main thing is that it maintain the thing to remember is that it is maintain constant angular velocity ratio between two shafts. The main aim of gear is to maintain the constant angular velocity ratio between the two shafts. One thing you should know that RPM ratio and angular velocity ratio is different. So you should not confuse with the RPM ratio. RPM ratio is the ratio of the average speed of the gears. So RPM ratio is different from angular velocity ratio. So here the gears are used to maintain the constant angular velocity ratio between two shafts. So gear are the higher pair. Gear cover the category of higher pair having the point contact between two point or line contact between two between two links, pairs. Say between two links means the two links are connected by a point contact or line contact. Okay, so it is used to maintain the constant angular velocity ratio between two shafts. Tooth wheel, we are the tooth wheel only. In friction disc, we cut some teeth. Okay, so gears have. So if two gears are meshed, the meshing are of two types. Okay, before we go to the meshing, we should know on which shaft the two gears can mesh. On which shaft two gear can be mesh. अगर आपकी shaft
पैरेलल है, टीथ पैरेलल है, ठीक है, या इंटरसेक्ट कर सकते हैं टीथ, या स्क्यूड हो सकते हैं। ये तीन केस हो सकते हैं कि शार्ट पैरेलल हो सकती है, शार्ट आपकी पैरेलल हो सकती है, या इंटरसेक्ट कर सकती है, या स्क्यूड हो सकती है। तो on that types of arrangement of shaft, the gears are classified according to the position of the shaft. That will take in the next lecture. So today I am taking nomenclature part, mainly taking the nomenclature part, how we nomenclate how we nomenclate how we do nomenclate the gears, and what are the different terms, what are the different important terms used in gears. Okay, first the type of gearing is first you know what a type of gearing का type क्या होता है, type of gearing, gear कैसे मैच कर सकते हैं, type of gearing दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल गियरिंग और एक होती है इंटरनल गियरिंग, ठीक है। अगर गियर्स एक दूसरे से एक्सटर्नली पहला गियर है या दूसरा गियर है तो ठीक होंगे, पहला गियर ऐसे रोटेट करेगा, दूसरा गियर इसके उल्टा रोटेट करेगा, तो दिस टाइप ऑफ गियरिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल गियरिंग। जब एक गियर दूसरे चीज से एक्सटर्नली मैच करते हैं, दैट टाइप ऑफ गियरिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल गियरिंग। अगर और तो एक गियर का क्लॉकवाइज रोटेशन है, दूसरा उसके डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर एक गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो एक्सटर्नल गियरिंग है, तो दूसरा गियर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर पहला गियर ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एक्सटर्नल गियरिंग हो रखी है, देन सेकंड गियर विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इंटरनल गियरिंग की बोथ गियर्स आर कनेक्टेड इंटरनली। अगर ये गियर 1 है ये गियर 2 है, तो गियर 1 अगर रोटेट कर रहा है ऐसे, तो गियर 2 भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि जो टीथ है वो इंटरनली गियरिंग किए गए हैं, मैचिंग जो है इंटरनल हुई है। तो इन द इंटरनल गियरिंग द रोटेशन ऑफ गियर 1 एंड गियर 2 इन द सेम डायरेक्शन विल बी द सेम डायरेक्शन, बट इन एक्सटर्नल गियरिंग द रोटेशन ऑफ गियर 1 and गियर 2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। So you should remember about this type of gearing in future for doing the numerical part. Okay, now so if I have two gears, so here we can see gear 1 is small, gear 2 is big. So how we saying gear 1 is small? Because the diameter of gear 1 is small as compared to diameter of gear 2. The small gear is called pinion. The small gear is called pinion, and the bigger gear is called gear wheel. Gear or wheel. ठीक है? If we have we have two gears matching each other, and gear 1 is small and gear 2 is bigger. The smaller gear is called pinion, and the bigger gear is called wheel. Gear wheel, and the input can be given to the pinion. So pinion will take the input, and this pinion will rotate the gear. Always pinion will rotate the gear. ठीक है? So this circle on which teeth are cutting, this circle is called pitch circle. This circle is called pitch circle, and this point is called pitch point. The point on which the teeth of both gear mesh. The point on which the teeth of both the pinion gear will mesh. The point is called pitch point, and the circle is called pitch circle. If the RP1 is the radius of pitch circle of pinion, and RP2 is the radius of pitch circle of wheel, then what the gear say? This RP1 upon RP2 should be ratio should be constant.
ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 should be constant, okay. So this type of gearing, this is example of external gearing. This is example of external gearing, because if we rotate pinion clockwise, this gear wheel will rotate anti clockwise, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, मैंने इसमें ये होता है कि पिच सर्किल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द पिच सर्किल, व्हाट इज द पिच पॉइंट, एंड व्हाट इज पिनियन एंड व्हाट इज gear. If this RP2 radius of this circle of the gear wheel is infinite, अगर इस RP2 को इस जो पिच सर्किल का जो रेडियस है किसकी, gear wheel की, इसको मैं स्ट्रेट कर दूं, इंफिनिटी कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. इट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन. देन दिस gear is called rack. ठीक है. अगर RP2 को रेडियस, जो RP2 इज द रेडियस ऑफ गियर और व्हील, गियर व्हील. इफ दिस रेडियस इज इनफाइनाइट, ठीक है, देन दिस सर्किल, एक सर्किल की रेडियस को मैं डिफाइन कर दूंगा, सर्किल के बिकम अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रैक. देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रैक एंड पिनियन arrangement. Then this arrangement is called rack and pinion arrangement, which convert the circular motion into the linear motion. For example, the steering mechanism. जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, तो हम स्टीयरिंग घुमाते हैं लीनियर, तो पिनियन, दिस इज पिनियन, एंड जो हमारा रैक होता है वो रोटेट कर, तो हम रोटेट कर मोशन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं लीनियर, रैक उसको इनपुट दे रहे हैं सर्कुलर, रैक उसको लेफ्ट या राइट में क्या करेगा, लीनियर मोशन देगा. उसको अगर हम राइट की तरफ घुमाएंगे तो राइट लीनियर मोशन देगा, लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो लेफ्ट लीनियर मोशन देगा. दैट्स अरेंजमेंट कॉल्ड रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यूज्ड इन स्टीयरिंग. तो मुझे क्या बताया मैंने कि पिच सर्किल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है, पिनियन क्या होता है, गियर क्या होता है, व्हाट इज रैक, व्हाट इज पिनियन अरेंजमेंट. तो अगर जो हमारा छोटा वाला गियर है उसे रैक पिनियन बोलते हैं, बड़े वाले गियर को गियर या व्हील बोलते हैं, ठीक है. और अगर किसी भी बड़े गियर की रेडियस इनफाइनाइट हो जाए तो उसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलेंगे, ठीक है. अगर इसकी इनफाइनाइट ना हो, इसकी इनफाइनाइट कर दें तो ये रैक बन जाएगा, ये क्या रहेगा, पिनियन रहेगा, तब भी रैक पिनियन अरेंजमेंट रहेगा. एंड रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट इज यूज्ड इन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है. पिच सर्किल क्या होते हैं, पिच सर्किल इज द सर्किल ऑन विथ मेटिंग पार्ट ऑफ द टीथ, ठीक है. पिच सर्किल को आगे डिस्कस करेंगे अभी नोमेनक्लेचर में. एंड पिच पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दो टीथ यहाँ पे मैच कर रहे हैं, मैचिंग हो रही है, दो टीथ की मैचिंग हो रही है, जिस पॉइंट पे दो टीथ मैच कर रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं दो टीथ, जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट. जैसे कि ये टीथ गियर 1 का, पिनियन का, और ये टीथ गियर 2 का क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट, ओके. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नोमेनक्लेचर पार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर. मैंने डायग्राम पहले बना रखा है, उसको और थोड़ी देर में देखते हैं. तो हमें ध्यान क्या रखना है कि gears are used to maintain constant angular velocity ratio, ठीक है. तो gear यूज किए जाते हैं यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, ठीक है. ये नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, नोमेनक्लेचर विद इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है. तो ये पूरा सर्किल जो है, ये पूरा सर्किल जो पूरा घुमा दूंगा, ये सर्किल बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा. तो इसको मैं बोलता हूँ पिच सर्किल. ये क्या सर्किल है, पिच सर्किल है. तो जो दूसरा वाला गियर है, ये जो ब्लू वाला बना है, ये मैटिंग गियर, दूसरा गियर यहाँ पे मैच कर रहा है. ये पहला गियर, ये क्या है, मैटिंग गियर, दूसरा गियर आके मैच करेगा, वो मैटिंग गियर, ये मैचिंग गियर. तो मैटिंग गियर और मैचिंग गियर के बीच में जो डिफरेंस रह गया, जो गैप रह गया, इस गैप को हम बोलते हैं क्लियरेंस. इस गैप को क्या बोलते हैं हम, क्लियरेंस या गैप. जो मैटिंग गियर है और जो मैचिंग गियर है, अगर मैं गियर 1 बोल दूँ उसे और उसे गियर 2 बोल दूँ, तो गियर 1 मैच कर रहा है किसके साथ, गियर 2 के. जो मैच करता है उसे बोलते हैं मैटिंग गियर, इसे बोलेंगे मैटिंग गियर. इसके साथ मैच कर रहा है उसे बोलेंगे
मैशिंग गियर, ये कौन सा गियर है? मैशिंग गियर, ठीक है। तो ये जहाँ जो पहला गियर दूसरे गियर से जो मैच कर रहे हैं, यहाँ पे गैप रह गया, इसे बोलते हैं क्लियरेंस। अगर ये क्लियरेंस नहीं होगा तो ये गियर यहाँ पे टच कर जाएगा और इस गियर का तीर क्या सकता है, टूट सकता है। दैट्स व्हाई वी टेक सम क्लियरेंस between mating, take some clearance when two gears are mating with each other। जब दो गियर आपस में मैच करते हैं तो वी सप्लाई वी टेक सम क्लियरेंस, क्लियरेंस से लेंगे, दूसरा गियर जो मैच कर रहा है पहले गियर से, उसका तीर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, दिस पार्ट इज क्लियरेंस। दिस सर्किल इज कॉल्ड पिच सर्किल, दिस सर्किल इज कॉल्ड पिच सर्किल, ठीक है। Okay, and this circle which passing to the upper part of the teeth, this circle which is passing to this circle is passing to the upper part of the teeth, it is called addendum circle. It is called addendum circle, and this circle is passing to the lower parts. This circle is passing to the lower part of the teeth, is called dedendum circle. Dedendum सर्किल। तो 3 सर्किल हो गए। एडेंडम सर्किल, टीथ है, अगर ये टीथ है, अगर ये टीथ है तो ये कौन सा सर्किल हुआ, एडेंडम, पिच सर्किल और डेंडम सर्किल। तो ये हो गया एडेंडम सर्किल, ये हो गया पिच सर्किल, और ये हो गया डेंडम सर्किल, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड फेस विथ, जो टीथ है, टीथ का जो लेंथ है, टीथ की चौड़ाई जो है ऐसा बोलते हैं फेस विथ, ठीक है। पहला टीथ और दूसरे टीथ के बीच में जो गैप है इसे बोलते हैं स्पेस विथ, पहले टीथ के बीच में और दूसरे टीथ के बीच में जो गैप है ऐसे बोलते हैं हम स्पेस विथ, द गैप बिटवीन द टू टीथ, इसको बोलेंगे स्पेस विथ। और जो आपकी थिकनेस है टीथ की जो थिकनेस है तो बोलते हैं सर्कुलर थिकनेस, ऐसे इसकी होगी, ये भी क्या है, सर्कुलर थिकनेस है। और एंड ऑफ द वन टीथ एंड द एंड ऑफ द सेकंड टीथ, पहला टीथ का एंड और दूसरा टीथ का एंड के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये पहले टीथ का एंड पार्ट, दो टीथ का एंड पार्ट के बीच जो गैप है, इसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिच सर्किल, सर्कुलर पिच। क्या बोलते हैं इसे, सर्कुलर पिच, इसे बोलते हैं सर्कुलर पिच, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया आपको, एडेंडम सर्किल बता दिया, डेंडम सर्किल बता दिया, पिच सर्किल बता दिया, वर्किंग डेप्थ बता दिया, क्या क्लियरेंस बता दिया, फेस बता दिया, स्पेस बता दिया क्या होता है, एक का एंड के बीच में दूसरे एंड तक के डिस्टेंस, उसे बोलते हैं सर्कुलर पिच, ठीक है। और जो टीथ है यह है फेस विथ, जो टीथ है ये पूरा पार्ट को बोलते हैं फेस, ठीक है। तो पिच सर्किल के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक, और पिच सर्किल के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा रोटेशन दिया है, गिफ्ट दिया है, इसे बोलते हैं फिलेट, ठीक है। अगर ये पूरा टीथ है, ये पूरा टीथ है तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं फेस, पूरा पार्ट क्या है, फेस, ये पिच सर्किल जा रहा है तो पिच सर्किल के ऊपर ये पूरा पार्ट को बोलते हैं, ये पूरा पार्ट क्या है, फेस है, ये पूरा पार्ट क्या है, फेस, इसके वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलेट। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रोटेशन दिया हुआ है, फिर से दिखाता हूँ उसे मैं, इसको थोड़ा समझे आप, तो दिक्कत हो रही है तो समझे। अगर ये पूरा टीथ है तो ये जो मैंने रोटेशन दिया है, जो मैंने थोड़ा कर्व दिया है, इसे बोलते हैं फिलेट, इसे बोलते हैं फिलेट। ये मेरा पार्ट जो है, जो फिर सर्किल ये और ये सर्किल, तो ये पूरा पार्ट फेस है, ये पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक, ठीक है, और फिर सर्किल वाले पार्ट को बोलते हैं फिलेट। तो फ्लैंक, फेस, फिलेट आपको क्लियर हो गया होगा, सर्कुलर पिच थिकनेस क्लियर हो गई, सर्कुलर पिच क्लियर हो गया, रैंडम सर्किल क्लियर हो गया, क्लियरेंस क्लियर हो गई, एडेंडम सर्किल क्लियर हो गया। तो सारे टर्म्स मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ है जो मुझे यूज करते हैं, वो मैं ले रहा हूँ।
वन इज डायमीटरल पिच, डायमीटरल पिच, इसके डायमीटर में, जो तीक का डायमीटर है, तो तीक का क्या है डायमीटर, तो डायमीटर कितना होगा ट्वाइस ऑफ आरपी, क्योंकि जो पिच सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, ये सेंटर अगर सर्किल का, ये पूरा पिच सर्किल बनना है, ये पूरा क्या बनना है पिच सर्किल बनना है, इसका सेंटर कितना है, ये सेंटर डिस्टेंस क्या लेंगे तो ये हो गया RP1, तो पिच सर्किल RP, तो रेडियस ऑफ पिच सर्किल, इसको ट्वाइस कर देंगे तो क्या बन जाएगा डायमीटर, ये पूरा सर्किल है, ये सेंटर है, यहाँ अंदर क्या इसकी रेडियस है, टोटल क्या होगा इसका डायमीटर, इसका ट्वाइस कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ RP, ठीक है, ट्वाइस ऑफ RP अपॉन एन क्या है नंबर ऑफ टीथ है, एन क्या है नंबर ऑफ टीथ, इसको हम ठीक है एन टी क्या है नंबर ऑफ टीथ, एन टी, ठीक है, तो टोटल डायमीटर पे कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, दैट इज कॉल्ड डायमीटरल पिच, को डीपी से दिखा सकते हैं, मतलब इस टीथ के डायमीटर पे, उस पूरे डायमीटर पे, पिच सर्किल के डायमीटर कितने क्या नंबर ऑफ टीथ हैं, इट्स कॉल्ड डायमीटरल पिच। एक होती है हमारी सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच जिसको हम पीपी से दिखाते हैं, ये क्या होती है इसको दिखा रहे हैं सर्कुलर पिच, पी सी से लिख सकते हैं, सर्कुलर पिच पी से लिख सकते हैं, पी सी, तो सर्कुलर पिच क्या है कि इस एंड से दूसरे एंड तक, मतलब जो पूरा आपका सर्कमफ्रेंस है, जो आपका पिच सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस है, उस पर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, ठीक है, सर्कुलर पिच मतलब कितने पूरे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या हुआ पूरे इसका 2 पाई आर, और आर क्या है रेडियस ऑफ द पिच सर्किल, इसको लिखते हैं आरपी अपॉन एन नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, तो डायमीटर पिच क्या है कि इस पूरे डायमीटर पे जो आपका टीथ है, ये सर्कुलर पिच है, एक पिच सर्किल है, उस पूरे डायमीटर में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, वो क्या है आपका डायमीटर पिच, इस पे कितने नंबर ऑफ टीथ कट पाएंगे, इस पे कितने नंबर ऑफ टीथ कट पाएंगे, इस कॉल्ड डायमीटरल पिच। सर्कुलर पिच क्या होगी, इसके पूरे सर्कमफ्रेंस पे कितने नंबर ऑफ टीथ है, इसके पेरीमीटर पे, इसके पेरीमीटर पे कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, वो क्या है आपका सर्कुलर पिच, ठीक, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम पी डी पी को और पी सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा पाई, क्योंकि डी पी कितना है 2RP अपॉन एन टी, एन पी सी कितना है 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा पाई आएगा, ठीक है, तो 2 पाई आरपी अपॉन 2RP अपॉन एन टी, सॉरी ये मैंने गलती दिया था, दिस विल बी द एन अपॉन 2RP डायमीटर पिच, टोटल डायमीटर में कितने नंबर ऑफ टीथ है, सॉरी आई एम करेक्टिंग, करेक्ट कर दो इसे, मैं करेक्ट को गलत कर दिया, उल्टा लिखा था कि पूरे डायमीटर पे, टोटल डायमीटर पे कितने नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन द डायमीटर इज कॉल्ड डायमीटर पिच, एंड नंबर पूरे सर्कमफ्रेंस पे कितने नंबर ऑफ टीथ है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पिच, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, डीपी कितना है एन टी अपॉन 2RP मल्टीप्लाई बाय पीसी कितना है 2 पाई आरपी अपॉन एंटी, एंटी कैंसिलिंग आंसर, तो पाई आरपी कैंसिल, क्या बचा मेरे पास पाई, मतलब डायमीटर पिच को और सर्कुलर पिच को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा पाई निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मॉड्यूल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज द इनवर्स ऑफ डायमीटर पिच, मॉड्यूल इज इनवर्स ऑफ डायमीटर पिच, इसका उल्टा लिख दूंगा तो क्या होगा मॉड्यूल, तो मॉड्यूल मतलब कि मैं पूरे अगर दो मॉड्यूल मतलब अगर दो गियर मैच कर रहे हैं तो उन दोनों गियर का होता है कि साइज डायमीटर अलग अलग हो, उन दोनों गियर का साइज डायमीटर क्या हो अलग अलग हो, और दो गियर जो मैच कर रहे हैं उन दोनों का साइज अलग है तो उन दोनों की डायमीटर पिच अलग होगी, उन दोनों की डायमीटर पिच क्या होगी अलग अलग होगी, तो मुझे क्या रखना है, मुझे मेरा एम क्या है कि आई हैव टू मेंटेन द कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी रेशियो, तो मुझे मॉड्यूल क्या रखना है सेम रखना है कि नंबर ऑफ टीथ दोनों ही गियर्स, दोनों ही गियर्स पे, एक छोटा वाला गियर पिनियन, एक बड़ा वाला गियर पिनियन, तो नंबर ऑफ टीथ का रेशियो क्या है सेम आए,
इससे क्या है, मेरा मॉड्यूल सेम रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, मेरा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल कितना है 2 पाई आरपी अपॉन एनटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल। तो दो गेयर मैच करेंगे, दो तब ये रहा गेयर, क्या लगेगा मैच करेगा, तो इन दोनों का मॉड्यूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉड्यूल क्या है, सिंपल डी अपॉन एन टी। टू आरपी क्या है, डी डायमीटर अपॉन टीथ। तो पूरे डायमीटर पे कितने टीथ कट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। वो पूरे डायमीटर पे, इस पूरे सर्कल पे डायमीटर होगा तो कितने नंबर ऑफ टीथ कट पाएंगे, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ द गियर। तो डायमीटर पिच क्लियर हो गया, सर्कल पिच क्लियर हो गया, मॉड्यूल क्लियर हो गया। ठीक है, सारे टर्म्स क्लियर हो गए। तो आज मैंने जो लिया आपको, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया कि गियर्स क्या होते हैं। गियर हायर पेयर का पार्ट है। ठीक है, गियर हायर पेयर होते हैं। गियर कुछ नहीं होता, गियर फिक्शन, जिसको एक डायमीटर को मैं नंबर ऑफ टी से कट कर दूं तो वो गियर बन जाता है। ठीक है, फिर मैं बताया पिच सर्कल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो बताया एक्सटर्नल गियरिंग क्या होती है, इंटरनल गियरिंग क्या होती है, रैंडम सर्किल क्या होता है, रैंडम सर्किल क्या होता है, सर्कुलर पिच क्या होती है। ठीक है, वर्किंग डेप्थ क्या होता है, ये सारे टर्म्स मैंने आज लिए। ठीक है, और जो मेन निकल के आया, जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आया तो वो मैंने बताया था अभी कि ओमेगा मेंटेन क्या करता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या करता है, मेंटेन करता है। ओमेगा 1 मतलब RP1 अपॉन RP2। ठीक है, और RP1 अपॉन RP2 टीथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1। ये क्या है, नंबर ऑफ टीथ है, N क्या नंबर ऑफ टीथ है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास बन के आया। कैसे बन के आया, ओमेगा 1 कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन करना है। V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है। तो ओमेगा तो V इक्वल टू R ओमेगा, तो R कौन सा लेंगे, ओमेगा 1 मतलब पहले वाले सर्किल का पिच सर्किल का, पहले वाले गियर का, गियर 1 का पिच सर्किल की रेडियस, गियर 2 की पिच सर्किल रेडियस का रेशियो क्या होगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 के बराबर होगा। बट उनका रेशियो जो है नेगेटिव होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टीथ के। जो यहाँ से मॉडल पर चले गया, फिर मॉडल क्या है 2 पाई अपॉन टी। तो पहले गियर का मॉडल निकालेंगे 2 आरपी अपॉन N1, दूसरे निकालेंगे 2 RP2 अपॉन N2। तो N क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टीथ क्या आ रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहे हैं, इसलिए N2 अपॉन N1 इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहा है। ठीक है, और नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में RP1 घूम रहा होगा, अगर ये 1 है और ये 2 है, जिस डायरेक्शन में RP1 जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, RP2 होगा। ठीक है, मैं फिर से क्लियर करता हूँ आपको। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो आज के लेक्चर में हमने सीखा है, जो आया है इम्पॉर्टेंट रिलेशन। क्या कि भैया अगर गियर 1 है और गियर 2 है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये रोटेट कर रहा है ऐसे। इसका है रेडियस RP1, इसका रेडियस है RP2। ठीक है, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, RP1 अपॉन RP2। मगर नेगेटिव साइड क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में 1 घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है 2 घूम रहा है। ठीक है, और N2 अपॉन N1 तीसरी क्या है, वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच सर्किल रेडियस ऑफ पिच सर्किल, बट इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीथ। टीथ के क्या है, वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, और पिच सर्किल के रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग कैलकुलेशन फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ आई हुई, पिच सर्किल से, सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच, मॉड्यूल, ये 3 मैंने टर्म बताया आपको। दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, जिससे मैंने ड्राइव की दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन। दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन टेल अस द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, पिच सर्किल रेडियस एंड नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो इस पे बहुत से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट करनी है, कॉन्सेप्ट पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गियर्स का, और उसके साथ साथ नोमेनक्लेचर पार्ट बताया गया है कि गियर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, हाउ वी नोमेनक्लेट द गियर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे गियर्स का अगला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बी सेफ, स्टे होम,
और कुछ डाउट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में तो कल लाइव लेक्चर को जो 11:45 पर है मॉर्निंग में उसको ज्वाइन करो, ठीक है। मैंने मैसेज व्हाट्सएप पे डाल दिया है। ओके बाय, थैंक यू।